So today we will record a video on machine learning. So in this video lecture I will discuss what is machine learning in detail, then types of machine learning, and then we will cover each type of machine learning one by one. Okay, so let us understand first what is machine learning. So as you can see here that machine learning is a system that can learn from example. Means as we learn from example, suppose you go to some shop at 2 o'clock and you find it is closed. Then you again next day you go to a shop again at 2 o'clock, around 2 o'clock, and find it closed. And then again maybe 2-3 days later you go to a shop at 2 o'clock and find it closed. Then when someone asks you that go to shop and purchase something around 2 o'clock, you will learn from your previous examples that it will be closed. So if this kind of behavior can be represented by a computer code which drives the computer, that phenomena is known as machine learning. Okay, so machine learning is a system that can learn from example, and it can improve itself. Like you have improved yourself that you will not go to purchase anything to that shop at or around 2 o'clock. So and this should not be done without being explicitly coded by the programmer. Okay, so programmer will not code this thing. Over a course of time, from the experience or from the data perceived by the system will learn, and it will improve itself, and this is known as machine learning. Okay, so importance of machine learning is from the idea that machine can singularly learn from the data to produce accurate results. And nowadays almost every area of computer science where business is done, people are trying to use machine learning to improve their business performance. Nowadays machine learners are predicting people's health, they are predicting people's money, they can predict what may happen to a particular stock on a particular date, and everything else, weather prediction and everything. Most of the things which are related to information technology can now be related to machine learning. So this is the thing which we will be discussing further. Now let us try to understand what conventional program does. See, conventional program is driven by an algorithm. Okay, okay, so in algorithm is something like we define the steps and then it performs according to those instructions every time. Okay, so let us take an example of taking two numbers and finding its sum. So what are the instructions? Okay, take first number, then second instruction, take next number. Okay, and third is add them, and then finally, okay, display the sum. Okay, so how this program will work? Okay, when program will start, it will ask the first number. Suppose you enter 2, then it will ask second number. Suppose you enter 3,
then it will add them, it will do 2 plus 3, and then it will display the sum, which is 5. And this conventional program will do this every time. Okay, and here when we means what happens is we are having a code, okay, and then we are taking input, and then we are giving output. Okay, so code, we already have a written code, and we take input and give output. In our case, we are taking two inputs. Okay, like I am giving 2 and 3, and it is giving me 3, and it is giving me 5 as output. But when it comes to machine learning, okay, so when you talk about machine learning, it learns from examples. Okay, like I will talk about same example. Okay, वही एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि एक टाइम है और दूसरा है शॉप स्टेटस. ओके, ओके, सो you go to a shop at 9 a.m. okay, it is open, you find it open. Then you go to shop at 10 a.m. you find it open, and then you go at 11 a.m. you find closed. So from next time I am going to write C for closed. Okay, and then at 12 it is closed, and then again at 1 it is open. Okay, and when I write O means open. Okay, and again second day also 9 a.m. it is open. Okay, and seventh example is second day again I go at 10 a.m. it is open, and then I go at 11 a.m. again it is open. Okay, and then I go to 12 o'clock and it is again closed. Okay, so suppose if this is the example, what a human being will learn from this example. Okay, learning from by human being will be that it is open. See again, if I say this is closed, so it is open from 9 to 10, and then it is closed at 12, and then 11:12 it is closed, and again, okay, it is again open at 1 p.m. okay, which here it opens again. So our learning is that if time is from 9 to 11 open, if time is 11 to 12 it is closed, and again the learning is if time is 1 p.m. okay, it is open. So this kind of learning we can learn, any human being can learn. Okay, so this is the way our machine learning
performs learning from data. So what happens in a conventional program? In a conventional program, there is a code which takes input and gives us data. Okay, but in machine learning, what happens? We take data, okay, and we give this data to ML machine learners, okay, and then it gives us a code, okay, and this code is also known as model, okay. This is known as learning model. Or now when we have got this code or model, it will work like conventional program, okay. When I will give input whether shop will be open at this time or not, it will give me output, okay. Again it will give me data, okay. This data will be again fed here, and a new model or new or improved model is generated. So this is all about मशीन लर्निंग, ओके. सो अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे कि ये आखिर ये कैसे डेटा से मशीन लर्नर्स लर्न करते हैं. तो इसके कई तरीके हैं. वी विल बी डिस्कसिंग everything one by one, okay. Okay, so now we will discuss types of machine learning, okay. So there are basically three types of machine learning. One is supervised machine learning, which means you need to give machine learning some examples. यानी हमें उसे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे. जैसे हमने शॉप का एग्जांपल लिया था कि हमने उसे एग्जांपल्स दिए कि 9 बजे गए तो ओपन था, 10 बजे गए तो ओपन था, और फिर 12 बजे गए तो क्लोज था. और देन फ्रॉम दोज एग्जांपल्स it will learn. So that is known as supervised machine learning. And then unsupervised machine learning is something which we will not give any examples, okay. So and it will learn from its own without giving any example. Suppose I give some fruits, okay, and 3 colors of fruits are there, okay. One is red in color, and another is green, and then another is yellow, okay. 3 fruits I have given. So what machine learning will do, it will taste first fruit. Suppose red fruit is sweet, okay, then it will taste again one more red fruit, and again it comes out to be a sweet, and then it tastes yellow food and it is sour, again one more yellows, it is sour, and for green it tastes bitter. So it will, what it will do, it will learn itself, and it will categorize these fruits into 3 categories, okay. And it will understand that these 3 fruits are different because their tastes are different, okay. So what learning we have got, that we initially were having a combination of fruits, okay. सारे fruits मिले हुए थे सभी, फिर कलर के बेसिस पे उसने अलग किया, फिर उसको टेस्ट किया तो टेस्ट के बेसिस पे भी वो अलग आया, और एक लर्निंग मिली कि येलो कलर के फ्रूट सॉर होते हैं. तो इस तरीके से जब हम लर्न करते हैं तो दैट इज़ नोन एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. ज़्यादातर जो रिसर्च है जिन पर डेटा अवेलेबल नहीं है, जैसे वायरस की रिसर्च हो गई, उसमें क्या करते हैं कि हम क्लस्टर करते हैं और देखते हैं कि दूसरे वायरस के मुकाबले ये वायरस अलग तो है, लेकिन किस वायरस के ज़्यादा पास है. तो जिस भी वायरस के ज़्यादा क्लोज कैरेक्टरिस्टिक्स देता है तो एक लर्निंग मिलती है कि हाँ ठीक है, ये इसकी तरह हो सकता है और इससे दूर हो सकता है. जैसे हमारा भी नया कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, तो जो वायरस आया है वो कोरोना वायरस की कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि उसके सारे ज़्यादातर चीज़ें जो उसकी सिमिलरिटी लेवल है, जो दूसरे जो वायरस हैं, दूसरे कैटेगरी के वायरस हैं, उनसे
ज़्यादा वो कोरोना वायरस से मिलता है, बट अगेन इट इज़ डिफरेंट, तो उसको एक अलग सब कैटेगरी बना के रखा है, बट वो सुपरवाइज्ड जो बड़ी कैटेगरी है वो कोरोना वायरस की है। ठीक। अब इसके बाद एक तीसरी लर्निंग आती है जहाँ जो कि हम कहते हैं कि इट इज़ मिक्सचर ऑफ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है, एल्गोरिथम रिएक्ट्स टू एन एनवायरनमेंट। ओके, सपोज करो हमने कोई उसको एग्जांपल नहीं दिया है और वो रोड पर जा रहा है, ओके, और वो राइट लेता है और उसको उसको अच्छी रोड मिलती है, ठीक। फिर वो लेफ़्ट लेता है, देखता है ख़राब रोड है, तो वो लेफ़्ट नहीं लेता है, वो आगे जाता है। फिर वो राइट लेता है तो उसको अच्छी रोड मिलती है, और फिर वो लेफ़्ट लेता है तो उसको ख़राब रोड मिलती है। तो इन्वायरमेंट उसे बता रहा है कि हम जब जब राइट ले रहे हैं तब तब अच्छी रोड मिल रही है, और जब हम लेफ़्ट ले रहे हैं तो हमें ख़राब रोड मिल रही है। तो इस तरीके के प्रोसीजर से वो लर्न करता है, एंड दिस इज़ नोन एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। वीडियो गेम्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। वीडियो गेम्स में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे अच्छी सड़क और ख़राब सड़क एक तरीके का रिवॉर्ड है। So in this way it learns. So these were all three types of machine learning, and now I will discuss uh, everything, means each type one by one. तो चलिए we'll see यही तीन कैटेगरीज जो मैंने अभी पिछले आपको स्लाइड में दिखाई, ये पिछली स्लाइड है, ओके। इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग, जैसा मैंने बताया, मॉडल ट्रेंड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। जैसे मैंने आपको शॉप का एग्जांपल दिया था कि हम कई बार गए और हमने एक हिस्ट्री कलेक्ट की कि कब शॉप खुली रहती है और कब शॉप क्लोज रहती है। सो मॉडल ट्रेंड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, रिजल्टिंग मॉडल कैन बी यूज टू मेक प्रिडिक्शंस ऑन न्यू डेटा। यानी हम नए डेटा पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब हमें शॉप पे जाना है तो कितने बजे जाए, ओके। तो वो जो लर्निंग मैंने आपको बताई थी वही है, ठीक है। प्रिडिक्टिंग अ वैल्यू बेस्ड ऑन पैटर्न्स डिस्कवर्ड फ्रॉम प्रीवियस डेटा, ओके। जैसे हम देखते हैं कि अक्सर वेडनेसडे को शॉप बिग बाज़ार या जो दूसरे शॉप्स हैं उनमें ऑफर्स आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने हिस्ट्री से लर्न किया है। सो दिस कैन बी अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। एंड देन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एज आई टोल्ड यू, एल्गोरिथम को कुछ पहले से पता नहीं होता, तो इट ट्राइज टू, फिर भी उसे सीखना है या लर्न करना है, तो व्हाट टू डू। सो एल्गोरिथम फाइंड्स, change the pointer, algorithm finds the trend and patterns in the data without prior training। यानी हमें कोई हिस्ट्री नहीं मालूम थी, मान लो हम लोग कोई नया प्लैनेट ढूंढ रहे हैं, ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमें इमेजेस मिल रही हैं उनको प्लैनेट के क्लस्टर में उसे कैटेगराइज करने की, ओके। सो डिस्क्राइबिंग योर डेटा बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। पॉपुलेशन का डेटा हमने कलेक्ट किया और हमें अभी कुछ भी पता नहीं है, उसकी कुछ भी हिस्ट्री पता नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू लर्न समथिंग एंड डू समथिंग फ्रॉम दैट लर्निंग। तो जैसे कोविड के डेटा पर हम यदि देखें तो हमारे पास इनिशियली कोई लर्निंग नहीं थी, लेकिन हमने पैटर्न देखा, हमने पॉपुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया और देखा कि किड ओल्ड पीपल एंड दिस मिडिल एज्ड पीपल। तो इसमें देखा कि रिस्क किड्स पर और मिडिल ओल्ड पीपल पे ज़्यादा है। तो इस तरीके से जब हम लर्न करते हैं तो दैट इज़ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया कि फीडबैक एक लूप लगा होता है और वो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, ठीक है। लर्निंग हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर, ओके। तो हम लेफ़्ट लेते हैं या राइट लेते हैं, उस बेसिस पे जो मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसके बेसिस पे हम फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गेमिंग में इसका काफ़ी यूज़ है, कंप्यूटर गेम्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, दे यूज़ अ लॉट ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, इसमें टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है और अब हम देखते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग कितने टाइप की हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि we can see that supervised learning can be of two types, which is classification and regression, okay. And then unsupervised learning can be of two types, which is dimensionality reduction and clustering. And then reinforcement learning is of one type only, and
इसमें ये भी बताया गया है कि किस किस एरियाज़ में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग जैसे क्लासिफिकेशन हम फ्रॉड डिटेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जैसे वी कैन लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। जैसे मैं क्रेडिट कार्ड यूज़र हूँ, तो मैं किस टाइम पे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता हूँ, किस लोकेशन पे यूज़ करता हूँ और लगभग कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन करता हूँ, इससे वो मेरी हिस्ट्री लर्न कर सकता है। ठीक है, इट कैन डू सुपरवाइज्ड लर्निंग। और यदि सपोज़ कीजिए कि एक अननोन लोकेशन और एक रैंडम अमाउंट का ट्रांजैक्शन जो कि मेरी बाइंग पैटर्न से मैच नहीं करता या मेरे ट्रांजैक्शन पैटर्न से मैच नहीं करता, वो मिलता है, तो ये लर्निंग के बेसिस पे उस जो ट्रांजैक्शन है उसको रोक सकता है और एक्स्ट्रा आइडेंटिटी डिटेक्शन कर सकता है, और वो जो भी यूज़र है उसको OTP भेज सकता है या फिर उसको एक्स्ट्रा रिमाइंडर भेज सकता है कि आप एक, क्योंकि हमने एक अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट की है तो इसलिए आप हमें ईमेल वाला भी OTP दो प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो जो भी आदमी फ्रॉड कर रहा होगा उसके पास वो वहाँ पर फ्रॉड को मशीन रोक सकती है। अदरवाइज़ यूजुअल पैटर्न ये है कि क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड हो जाता है, फिर हम उसकी इंक्वायरी करते हैं। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल इन फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है, आपके लॉगिन पर भी यदि अनयूजुअल कंट्री से लॉगिन हो रहा है, जैसे सुबह सुबह इंडिया में हुआ लॉगिन और ठीक 1 घंटे बाद US से लॉगिन हो रहा है, तो वो आपको रिमाइंड कर सकता है, क्योंकि वो कैलकुलेट कर सकता है कि 1 घंटे में आपकी लोकेशन कितनी ज़्यादा चेंज हो सकती है विद द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। ठीक, इसके अलावा इसका यूज़ ईमेल स्पैम डिटेक्शन में यूज़ कर सकता है। ईमेल्स को वो स्टडी कर सकता है कि किस टाइप के ईमेल मैं रीड करता हूँ और किस टाइप के ईमेल को मैं स्पैम मार्क कर देता हूँ और उसको नहीं रीड करता हूँ या स्पैम में फ़ोल्डर में कर देता हूँ। तो बेस्ड ऑन मेरी मार्किंग एंड बेस्ड ऑन जो भी ईमेल प्रोवाइडर सपोज़ कीजिए जीमेल है, उसकी मार्किंग के बेसिस पर it can be identified that whether an email is a spam or not. But as you know, हम लोग ह्यूमन हम लर्न करते हैं तो हमसे भी गड़बड़ी हो सकती है, तो इसी तरह मशीन से भी गड़बड़ी हो सकती है। आपका कभी कोई यूज़फुल मेल जो कि स्पैम पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो स्पैम में जा सकता है और आप लोगों के गए भी होंगे। कई बार आपका मेल आता है और आप कहते हो मैंने रिसीव नहीं किया, फिर वो कहता है आप स्पैम में चेक करिए। तो उसका रीज़न ये है कि हम जो भी लर्निंग स्पैम के लिए कर रहे हैं, आपका जो नया ईमेल आया है वो उसी जगह चला गया है। ओके, एंड देन डायग्नोसिस किया जा सकता है कि आपको कोई डिजीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो पेशेंट की हिस्ट्री हम देखते हैं कि ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको हार्ट डिजीज़ डायग्नोज हुई है उनके टेस्ट रिजल्ट्स क्या क्या रहे हैं, किस किस रेंज में रहे हैं, और फाइनली हम डायग्नोज कर सकते हैं कि यदि आपके भी टेस्ट रिज़ल्ट उनकी रेंज में है जो कि पॉजिटिव पा गए हैं हार्ट डिजीज़ के केसेस में, तो ये सुपरवाइज लर्निंग यहाँ पे भी आपकी हेल्प करती है। ओके, सो सुपरवाइज लर्निंग इज़ हेल्पिंग डॉक्टर्स टू बिकम स्पेशलिस्ट। इमेज क्लासिफिकेशन, जैसे आप फेस का क्लासिफिकेशन होता है और आजकल तो मोबाइल्स पर भी ये इमेज क्लासिफिकेशन आ गया है। ठीक है, यदि आप लोगों ने गूगल पिक्चर्स देखा होगा तो वो बाकायदा क्लासीफाई कर देता है कि ठीक है, हर एक पर्सन को क्लासीफाई कर देता है। सपोज कीजिए कि 5 पर्सन्स आर देयर इन अ पिक्चर एंड इफ़ यू वांट टू सी पिक्चर ऑफ अ पर्सन विच इज़ प्रेजेंट, तो वो उसी सारी पिक्चर्स में से केवल हर वो पिक्चर दिखाएगा जिसमें वो पर्टिकुलर पर्सन प्रेजेंट हो। ठीक, तो मोटा मोटा क्लासिफिकेशन कैन बी यूज्ड इन फ्रॉड डिटेक्शन, ईमेल स्पैम डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड देन इमेज क्लासिफिकेशन। तो सुपरवाइज लर्निंग में एक था क्लासिफिकेशन और दूसरा है रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली कई कैटेगरीज में होता है, इसलिए इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, और रिग्रेशन कैटेगरीज में ना हो करके एक कंटिन्यूस वैल्यू होती है। ठीक, जैसे हाउस का प्राइस कितना होगा, इस स्टॉक का प्राइस कितना होगा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि 100 होगा या 150 ही होगा। ठीक, ये कुछ भी हो सकता है। तो रिग्रेशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग जहाँ पर हम कंटिन्यूस वैल्यू को लर्न करने की और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे हम स्कोर प्रिडिक्ट करते हैं कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और इसी रेट से चलता रहा तो अगला स्कोर क्या होगा। ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे हमने बात की क्लासिफिकेशन एंड वी टॉक्ड अबाउट रिग्रेशन।
So next type of learning is unsupervised learning. So and please remember, I am just giving you overview of every type of learning will be discussed in detail in coming video lectures. Okay. सो डायमेंशनली रिडक्शन में जैसा कि नाम है कि हम कुछ डायमेंशंस को कम कर देते हैं ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए. ओके. सो दिस मेथड आई विल एक्सप्लेन इन व्हेन आई विल डिस्कस डायमेंशनलिटी रिडक्शन. लेकिन मोटा मोटा ये है कि यदि कोई ऐसा डेटा है जिसमें वी हैव 1000 फीचर्स, तो दोज 1000 फीचर्स विल बी reduced to important features, and on the basis of important features we can learn. जैसा फेस रिकग्निशन में यूज़ होता है. फेस रिकग्निशन वी मे हैव थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स, बट फेस रिकग्निशन में हम what is the difference between the eyes and difference between the eyes and lips and other features, ये कुछ important features को उसमें से extract कर लेते हैं. और इस तरीके से हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन है वी डू दैट. ओके. एंड द एरियाज वेयर इट इज़ यूज: टेक्स्ट माइनिंग, फेस रिडक्शन, बिग डेटा, विजुअलाइजेशन. ओके. सो इफ यू विल कंसिडर ईच एंड एवरी फीचर ऑफ बिग डेटा, देन विजुअलाइजेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट. एंड image recognition we also have to do dimensionality reduction. Okay. देन क्लस्टरिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्लस्टरिंग में हम क्लस्टर कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 3 कलर्स के फ्रूट्स थे तो उनको हमने कलर्स के बेसिस पे अलग अलग किया, फिर टेस्ट किया तो देखा कि टेस्ट भी अलग अलग है, तो और उस बेसिस पे हम उसे अलग अलग कर लेते हैं. इन्हें क्लस्टरिंग का यूज़ किया जाता है बायोलॉजी में, सिटी प्लानिंग एंड टारगेटेड मार्केटिंग में, जहाँ पे जो हमारे फ्रीक्वेंट कस्टमर्स हैं और जो रिटर्निंग कस्टमर्स हैं और न्यू कस्टमर्स हैं, हम इनमें क्लस्टर कर सकते हैं और उनके लिए अलग अलग वी कैन कम अप विथ डिफरेंट प्लान्स. ओके. और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहाँ पे हम रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग है, जहाँ पे हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उसे सुपरवाइज करते रहते हैं, बट ज़्यादातर हिस्सा अनसुपरवाइज्ड रहता है. तो दिस इज़ नोन एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग. इसे हम गेमिंग में, देखिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग की डेफिनेशन पे आते हैं: मॉडल यूजेस फीडबैक लूप टू इटरेटिवली इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस. ओके. तो ये गेमिंग में हम इसे यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ इन फाइनेंशियल सेक्टर, वी कैन यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रोबोट नेविगेशन. ओके. आप यू माइट हैव हर्ड दैट driverless car is being tested, so that is using the technology of learning, which is combination of supervised and unsupervised learning, and it is learning from feedbacks which it is getting from on the road. So this is known as reinforcement learning. Okay, in this side I have categorized machine learning into 3 parts, which we have already discussed. We have already discussed dimensionality reduction and clustering here. Okay, कि अनसुपरवाइज लर्निंग में डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता है और इसको बिग डेटा, विजुअलाइजेशन, मीनिंगफुल कंप्रेशन, स्ट्रक्चर डिस्कवरी, फीचर एलिसिटेशन. सो दीज काइंड्स ऑफ डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एंड इन ऑर्डर टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. जैसे क्लस्टरिंग का यूज़ रिकमेंडर सिस्टम्स में होता है, टारगेटेड मार्केटिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन, रीइंफोर्समेंट, रियल टाइम डिसीजंस, गेमिंग, एआई, स्किल एक्विजिशन और रोबोट नेविगेशन. इसी तरह सुपरवाइज में जो क्लासिफिकेशन है इस तरीके से होता है. द पर्पज़ ऑफ दिस स्लाइड और दिस इमेज is to show you overview of machine learning. So this is overall view of machine learning which we will be studying in this unit 5. Okay. So now after this lecture you can ask me questions by writing the questions in the comment box. Okay. So thank you for listening to this video lecture patiently.